22nd to 24th January 2022 editorials analysis, right? So it's a very important editorial series. We'll discuss a very unique articles today. First is suspension of MLAs up for judicial review. In this article, we'll get to know constitutional provisions related to the suspension of MLAs when Maharashtra Legislative Assembly suspended 12 BJP MLAs for disorderly conduct, right? And how Maharashtra Assembly defended its opinion on that, right? The idea of new India, the idea of India which is enshrined in our preamble, in our constitution, right? So these are the articles that which we are going to discuss today. The evolution of new citizens, right? The things which we citizens have to understand for the formation of new India. Such kind of articles are very important for writing answers and for understanding the various concepts given in our constitution as well as the evolution of our constitution, right? Third article is based on India German partnership. So Germany has made a new foreign policy for Indo-Pacific region, keeping India at its centerpiece, right? So this is an important article. Budgeting for the education emergency sites based upon the budget allocated for education every year. Okay, so these are important article and you will get various points which you can directly use them in your answer writing, as well as it will build your competency level for the interview as well. So each article is unique in its perspective, in its view, in its content. So please subscribe our channel, right? And share it with your friends, and do not miss any of the video provided by us because it's really helpful for your preparation. And thank you for joining us, and please subscribe our channel, and let's start with our first article. Now we'll see an important article, an important discussion, and a new phenomena in Indian parliamentary democracy. Okay, the theme of this article is 12 MLAs, right, from another party suspended for 1 year by Maharashtra Legislative Assembly for their disorderly conduct. Okay, and for this Supreme Court is hearing the case, and Supreme Court wants to know that what is the rationality behind this. I mean, एक सेशन से ऊपर सस्पेंड करने की वजह क्या है वो सुप्रीम कोर्ट असेंबली से पूछ रही है। ओके, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या अराइज होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि जो अनलिमिटेड पावर है सस्पेंशन की, स्पेशली इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखो मैं आपको बता दूं कि जब सस्पेंशन होता है किसी भी एमएलए का, राइट, तो उस टाइम पे वो ऑफिस जो है वो अपना होल्ड करके रखता है, ठीक है। ड्यूरिंग सस्पेंशन मेंबर कैन कंटिन्यूअसली होल्ड हिज ऑफिस बट ओनली लूजेस his voice in the assembly. So ultimately who is suffering? It is the people who is suffering, right? लोगों की आवाज नहीं चाहिए, अल्टीमेटली वो सफर कर रही है, ठीक है। तो इससे कई ज्यादा हमारे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे आर्टिकल 190 क्लॉज 4, साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये दोनों जो है वो इससे वायलेट होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली से ये आंसर मांगा है कि अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यू हैव सस्पेंडेड 12 बीजेपी एमएलएस, राइट, बियॉन्ड 6 months। तो हम वो इस आर्टिकल में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्वेश्चंस रेज किए? इट हैज क्वेश्चन द रैशनैलिटी ऑफ सस्पेंडिंग मेंबर्स बियॉन्ड एन ऑनगोइंग सेशन। ओके, आर्टिकल 190 क्लॉज 4, जैसे मैंने आपको बताया, इट स्टिपुलेट्स दैट द हाउस मे डिक्लेयर वैकेंट द सीट ऑफ अ मेंबर हु इज एब्सेंट फॉर 60 days विदाउट परमिशन। अगर 60 दिन से ऊपर कोई मेंबर बिना परमिशन लिए अपनी सीट वैकेंट रखता है तो हाउस जो है, जो असेंबली हाउस है, वो उस सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। ओके, और सेकंड एक्ट है आरपीए एक्ट 1951। ये कहता है कि अगर 6 months से ज्यादा कोई सीट खाली रहती है तो उसको हम बाय इलेक्शन द्वारा फिल करते हैं। हमने कई बार सुना है कि बाय इलेक्शंस होती है। तो व्हाट इफ अ constituency can be unrepresentative in the assembly for a whole year in the light of this 6 months limit? तो
सस्पेंशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया सस्पेंशन क्या है, इट्स अ वर्ड्स कॉन्सिक्वेंस। सस्पेंशन के टाइम पे जो हमारा मेंबर है, जो एमएलए है, उसके पास ऑफिस तो रहता है लेकिन उसके पास वो पावर्स नहीं रहती कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात को असेंबली में रख सके या वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके असेंबली में। सो इट्स जस्ट लाइक अ डमी मेंबर। ओके, सो सस्पेंशन सीम टू हैव वर्ड्स कॉन्सिक्वेंस that outright expulsion from the legislature as by-election will be held within 6 months। अगर सस्पेंशन है, सॉरी, अगर एक्सपेल्शन है तो इलेक्शंस हो जाएंगे 6 मंथ्स में। अगर सस्पेंशन है तो इलेक्शन नहीं हो सकती 6 मंथ्स में, क्योंकि मेंबर तो अवेलेबल है, ही हैज ओनली लॉस्ट हिज राइट्स टू स्पीक अप। ओके, they questioned about the consequences of an unlimited power of suspension for democracy। तो जिसने भी सुप्रीम कोर्ट में जो एमएलए थे, उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट पे केस किया, उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस बताए कि अनलिमिटेड पावर ऑफ सस्पेंशन फॉर डेमोक्रेसी के, राइट। सो व्हाट्स द स्टेट गवर्नमेंट स्टैंड। अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बताया, स्टेट गवर्नमेंट ने बताया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल्स बताए। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर टू पनिश फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, क्यों उनको सस्पेंड किया गया? फॉर मिस ऑर्डरली कंडक्ट। तो अगर कोई एमएलए अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करता है या डिसऑर्डरली कंडक्ट करता है तो कोई भी लिमिटेशन जो है वो कोई भी लिमिटिंग पावर नहीं है असेंबली की कि वो उसको सस्पेंड ना करे। Once the power to punish a member for disorderly conduct is recognized, there is no judicial review of the manner in which it is exercised. Even judicial review has no power to exercise it, okay, because it has been suspended for breach of privilege or for disorderly conduct, right? Even under the Rule 53 of Master Legislative Assembly rules, the Speaker could direct a member to withdraw from the Assembly for disorderly conduct for the day or the remainder of the session। तो ये जो रूल है मास्टर असेंबली का, इसमें इसके द्वारा स्पीकर जो है वो किसी भी मेंबर को कह सकता है कि आप डिसऑर्डरली कंडक्ट की वजह से आपको सस्पेंड किया जा रहा है सेशन के लिए या किसी भी दिन के लिए। तो इसलिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है, जबकि पूरे हाउस ने डिसाइड कर लिया कि इनका सस्पेंशन करेंगे। जब पूरे हाउस ने डिसाइड कर लिया, पूरी असेंबली ने डिसाइड कर लिया कि इन 12 मेंबर्स को हमने सस्पेंड करना है, तो उनकी पावर्स पे कोई भी लिमिटेशन जो है वो नहीं है। फाइन। Even on the question of declaring a seat vacant if the member is absent for 60 days, the government has argued that it is the house that declares the seat vacant। It is the house, okay? ये कोई विदाउट परमिशन वाली वैकेंसी नहीं है। It is the house that declared the seat vacant and it is not a necessary consequence of a member's absence for 60 days on which the house met। Okay, so further during suspension, जैसे मैंने आपको बताया, a member continues to hold office but only loses their voice in the legislature। अब ultimately होगा क्या? Ultimately it's the people who are suffering because who are MLAs? MLAs are the front voice of the people। अगर वही असेंबली से सस्पेंड रहेंगे तो लोगों की आवाज को दबा दिया जाएगा। It's the only their needs which is getting suppressed। Fine। तो ये काफी अच्छा आर्टिकल है जो कि आप लोग समझ सकते हैं और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट आर्टिकल है जो कि आपको डेफिनेटली आपको मेंस में पूछा जा सकता है। फाइन। नाउ एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आइडिया ऑफ इंडिया। राइट, लुक गाइस, यू आर एन एस्पिरेंट। ठीक है, आप एस्पिरेंट हो एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर्स। ओके, अब एस्पिरेंट है कौन? एस्पिरेंट वो है जिसके एक वाइडर परसीविंग पावर्स हैं, ठीक है, जिसकी एक अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी और कैपेसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक कोट दे दूं और एक ऑर्डनरी आदमी को उस कोट को समझने की क्षमता और आपकी उस कोट को समझने की क्षमता बहुत ही ज्यादा अलग होगी। ओके, सो द आइडिया ऑफ इंडिया, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ मॉडर्न नेशन। तो इस आर्टिकल में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोग अगर जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि प्रियम्बल, अगर हम लोग प्रियम्बल को अच्छे से समझ लें तो हमें समझ आ जाती है कि दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया। बट व्हाट इज द एवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ इंडिया, कि हमें टाइम के साथ साथ हमें इवॉल्व करना है, हमें टाइम के साथ साथ अपनी थिंकिंग, अपनी कैपेसिटी को इवॉल्व करना है कि इंडिया भी उसी लेवल से इवॉल्व हो सके। फाइन।
तो इस आर्टिकल में काफी ज्यादा कोट्स दिए हैं कि व्हाट इज द बेसिस, व्हाट आर द बेसिस ऑन विच इंडिया इज स्टैंडिंग फॉर, राइट। इसमें अंबेडकर के पॉइंट्स दिए गए हैं कि अंबेडकर जी ने कैसे कास्ट जो सेग्रीगेशन थी, जो कास्ट डिवाइड था, उसको खत्म करने के लिए कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त कैसे उन्होंने कितनी सारी चेंजेस लाई, तो वो सारा इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। Okay, so the idea of India as a modern nation is based on certain conception of human rights and citizenship, which is vigorously backed by first is due process of law and equality before law, which is a gift of the constitution. India में due process of law, okay, and equality before law, ये दो चीजें जो ऐसी हैं, it's a gift to all of us, right? The modern idea of India has a mystical influence of Tagore and a spiritual and moral influence of Gandhiji. All the aspirants who are preparing for general studies for, I strongly recommend them to study the biography of Gandhiji. Right? I'm taking a special course of ethics because I personally take ethics course in 1PSC. तो मैं आपको एथिक्स के कैसे प्रिपेयर करना है, आपको गांधी जी के कौन से कोट्स यूज करने हैं, मैं सब आपको एथिक्स में बताने वाला हूं वो। ओके, so it is a robust, secular and legal construct based upon the vision and intellect of our founding fathers, notably Ambedkar, Nehru and Patel, राइट। तो जैसे हमारे प्रियम्बल में ऑलरेडी दे के रखा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, राइट, तो इसमें हमारा फाउंडेशन या बेडरॉक जो है हमें वो प्रोवाइड किया जाता है कि जिसके आइडियल्स पे इंडिया जो है वो पूरा का पूरा स्टैंड है। सो व्हाट इज द आइडियल ऑफ न्यू इंडियन सिटीजन्स? तो मेरा तो एक ये मानना है कि इफ यू हैव अ कैपेसिटी एंड कैलिबर देन ऐड कैरेक्टर टू इट, इंडिया विल ऑटोमेटिकली बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन। ओके, सो how India evolved, how particular society or how particular nation can evolve. So the interdependent society with the legal system leads to the formation of communities. पहले communities बनती हैं, उन communities में जब legal system associate होता है तो क्या बनती है? society बनती है, उस सोसाइटी से सिविलाइजेशन बनती है और अल्टीमेटली सिविलाइजेशन जो होती है वो नेशन का रूप जो है वो धारण कर लेती है। ओके, अब हमारे अंबेडकर साहब जो थे, उनको एक न्यू काइंड ऑफ सिटीजन पैदा करने में, उनको जो इंडिया की साइकोलॉजी थी, जो इंडिया की मेंटेलिटी थी, उसके बारे में समझने में उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनको ये पता था कि हमारी कंट्री में आज भी कास्ट और सोशल हायरार्की बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अंबेडकर साहब ये चाहते थे कि एक हमारी कंट्री में इंडियंस को, एक हमारी कंट्री में हमारे सिटीजन्स को, इंडियंस को एक ऐसा रूप धारण करना चाहिए कि हमेशा उनके लिए लॉयल्टी जो है इंडिया के लिए बनी रहे, ठीक है। और इंडियन शुड ऑलवेज रिमेन इंडियंस एंड थिंक बियॉन्ड रिलीजन, कल्चर और लैंग्वेज। ओके, तो जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आया तो उससे क्या हुआ? वन मैन वन वैल्यू आई, ठीक है। तो अगर हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि इनइक्वालिटीज को खत्म करने की कोशिश करता है, इक्वल राइट्स की बात करता है, दलित को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो है, इसने कैटेगराइजेशन और सोशल इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए बहुत सारे क्लॉज डाले हैं। जबकि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज देखते हैं या हमारी फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं जो कि हमें इक्वल राइट्स देने की बात करते हैं, हमें सोशल और कास्ट हायरार्की को खत्म करने की बात करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेवलप किया गया है, राइट। सो अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड अ लीगल स्ट्रक्चर टू द आइडिया ऑफ इंडिया. It reflected the idea that one nation may incorporate differences of caste, creed, culture, color, etc. and may still rely around a democratic consensus. तो ये जो कंसेंसस है, जो डेमोक्रेटिक कंसेंसस है, ये किसके अराउंड चलता है? द कंसेंसस इज अराउंड द सिंपल प्रिंसिपल दैट इन अ डेमोक्रेसी अंडर द रूल ऑफ लॉ वन डजंट नीड टू एग्री ऑल द टाइम, ठीक है, but should agree on ground rules. This is very important line. The consensus is around one does not agree all the time but should agree on ground rules. What are the ground rules? It is the basic structure of the constitution, right? It is the principle, it is the preamble on which Indian ideals are standing.
तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि जो आइडियल्स हैं न्यू सिटीजन्स के, ये जो आइडिया है न्यू इंडिया का, इसका जो ग्राउंड है, इसका जो फाउंडेशन है वो क्या है। सो अगर हम लोग ये देखें कि व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ, ये हम इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे या पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, हम इसको फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, राइट। सो इंडियन नेशनलिज्म इज emerging from ancient civilization. There are various civilizations from which India has emerged, right, and it is united by sheer history. अगर हमारी कंट्री में, अगर हमारी कंट्रीज में, अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं होता, अगर कॉलोनियल इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो हमारी एक शेयर्ड हिस्ट्री नहीं होती। अगर हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स नहीं आते तो हमारी एक शेयर्ड हिस्ट्री नहीं होती, हमारी हिस्ट्री भी बड़ी ही डिस्टॉर्टेड होती, ठीक है। we have already sustained by a pluralistic democracy. Pluralistic democracy मतलब हमारी कंट्री में आज भी we are multi religious, we are multilingual, we are multi we have different aspects, we are east west north south, इतने पार्ट्स हैं हमारी कंट्री के, तो we are pluralistic democracy, we are pluralistic society, right, but still we are one under the rule of law. ये समझने की जरूरत है। The struggle of Indian independence was not simply a struggle for freedom from alien rule. It was a shift away from an administration of law and order centered on imperial despotism. फाइन। तो अगर हम लोग देखें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में, राइट, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? सबसे बड़ी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द मॉरल प्रिंसिपल्स. It is on moral principles that from which our constitution has born, right. तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हमारी कंट्री में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फ्री स्पीच, पब्लिक स्क्रूटनी ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस एंड लीगल लिमिटेशंस, ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। ये एक मॉरल लीगल तो चलो ठीक है, ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी लगाता है। जैसे कि हमारा जनरल स्टडीज 4 जो है, या जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, जो स्पेशली हमारे डीपीएसपी है, ये हमें मॉरल ऑब्लिगेशंस लगाता है। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पे मॉरल ऑब्लिगेशंस लगाती हैं कि हम लोग we will stick adhere to the moral principles, right. We have to save the spirit of the constitution in the new India. ये लिखा गया इस आर्टिकल में, that we have to save the spirit of the constitution in the new India. जैसे कि अंबेडकर साहब ने ये कहा, I want all people to be Indians first, Indian last, and nothing else but Indians. अगर हम लोग जिस दिन हम लोग इंडिया को पहले रखेंगे, जिस दिन हमारी टॉप प्रायोरिटी बियॉन्ड एनी पॉलिटिकल पार्टी, बियॉन्ड एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, अगर हम लोग इंडिया को पहले देखेंगे तो हमारा इंडिया विल बी डेफिनेटली बी अ न्यू इंडिया एंड इट विल बी डेफिनेटली बी अ डेवलप्ड इंडिया, ओके। तो द स्पिरिट, what is the spirit of the constitution in the new India? It is possible to pervert the constitution by merely changing the form of administration. डॉक्टर अंबेडकर thus enshrined डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये लिखा गया है, मोरालिटी दी गई है, मोरालिटी प्रोवाइड की गई है कि कैसे हम लोग एक न्यू इंडिया को हेड कर सकते हैं। Hence, the spirit of the constitution has to be followed as guide as India head towards the 75th anniversary of independence. तो guys, ये आर्टिकल काफी अच्छा है, जो कि आप ऐसे में यूज करेंगे, और आप लोग जब पॉलिटी के जो मॉरल प्रिंसिपल्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो प्लीज इस आर्टिकल को एक दो बार जरूर अच्छे से पढ़ना। नाउ आर्टिकल बेस्ड ऑन इंडिया जर्मन रिलेशनशिप, राइट। सो जर्मनी ने एक नई फॉरेन पॉलिसी बनाई, किसके लिए? इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, कीपिंग इंडिया एज इट्स सेंटरपीस। इंडिया को सेंटर पे रख के जर्मनी ने एक फॉरेन पॉलिसी बनाई इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। नाउ व्हाई इंडिया? इंडिया के पास दो बड़े ही यूनिक एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इज इट स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इंडिया इज वेरी यूनिकली लोकेटेड। इंडिया उस हाईवे पे है जिस हाईवे पे सभी जमीन खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो इंडिया की लोकेशन। दूसरा, डेमोग्राफिक एडवांटेज। इंडिया ऑलवेज हैज अ रेडी मार्केट, वेदर इट्स बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर। इंडिया हमेशा एक रेडी मार्केट है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंडिया बिलीव्स इन सॉफ्ट पावर।
अप्रोच है वो काफी सॉफ्ट है। और एक ट्रेडिंग नेशन को क्या चाहिए? ट्रेडिंग नेशन को चाहिए कि कोई सॉफ्टली, कोई यूनिकली, कोई पीसफुली उसके साथ ट्रेड कर सके। एंड व्हाई जर्मनी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक रीजन? पता है क्यों? बिकॉज इंडो पैसिफिक रीजन इज होम टू अराउंड 65% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन. 20 of the world's three megacities lies in Indo-Pacific region. It accounts for 62% of the global GDP and 46% of the world's merchandise trade. Indo-Pacific region has Japan, China, India, Australia. Look how important Indo-Pacific region is for European nations or for American countries, right? And the region is also the source of more than half of all the global carbon emissions. So अगर ऐसी कंट्रीज जो कि ग्लोबल चैलेंजेस को लेके सच एज क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन, अगर ऐसा बिजनेस इस यहाँ से, यहाँ की लोकेटेड कंट्रीज के साथ करती हैं, तो वो काफी ज्यादा मॉनिटरी उनको बेनिफिट रहेगा. ओके, सो इंडिया, जर्मनी एंड इंडो पैसिफिक रीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रेविटी है, ठीक है, वो इंडियो पैसिफिक रीजन की तरफ शिफ्ट हो रही है. द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द इंडो पैसिफिक रीजन एंड इंडिया इज अ की प्लेयर इन दिस रीजन. ये आप रीजन देख सकते हैं, राइट? So, the visit of Bahrain is a concrete outcome of Indo-Pacific guidelines that Germany adopted in 2020 and EU's Indo-Pacific strategy. And moreover, जैसे मैंने आपको बताया, Germany is a trading nation. More than 20% of the German trade is conducted in the Indo-Pacific neighborhood. And just like India, for Germany too, it is vital for trade routes to stay open, to uphold freedom of navigation, and to ensure peaceful resolution of disputes based on international law. So, what are the coordination? What are the coordination between India and Germany in tackling climate change? Climate change, which is a hot topic going on in world politics, right? So, climate change is very important, and there is a coordination. There is a one bench on which India and Germany is equally situated. Okay, Germany cooperates with India to the tune of 1.3 billion euros a year in development projects. Okay, 90% of which goes in fighting climate change, saving natural resources as well as promoting clean and green energy. तो सोचो, जर्मनी इतना ज्यादा पैसा अगर इंडिया में लगाएगी तो अल्टीमेटली उसके लिए कितना बेनिफिट रहेगा. तो India always plays a role of ready market for all the European nation countries. Okay, so it is also helping India. अब हेल्प के नाम पे वो अपना बिजनेस डेवलप करते हैं और अल्टीमेटली हमारी कंट्री को भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पे, ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, नए प्लांट्स लगते हैं, नए प्रोजेक्ट्स लगते हैं, तो और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी काफी ज्यादा हेल्प होती है. तो अल्टीमेटली इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज, right? So Germany is also helping India in the construction of the solar plant in Maharashtra's Dhule, having a capacity of 125 megawatts. So, and what it will serve? It will serve 2,20,000 households and generate annual CO2 savings of annual carbon savings of around 1,55,000 tons. Okay, so you can see that how much important Indo-German relations, right? Now an article with title Budgeting for the Education Emergency. अब emergency word क्यों यूज किया गया? Because in our previous budgets, very less portion of the budget has been allocated to the education sector. Okay, so मैं आपको बताऊं कि education जो sector है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ था, उसमें एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया था. यानी कि बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट अपॉन दिस सब्जेक्ट. ओके, तो अब मैटर ऑफ कंसर्न क्या है इस आर्टिकल में? क्या है? गवर्नमेंट विल एलोकेट टू एजुकेशन एंड फॉर व्हाट पर्पस, राइट? ये वर्ड यहाँ पे जरूरी है, फॉर व्हाट पर्पस. ओके, क्योंकि पब्लिक स्पेंडिंग जो है एजुकेशन की बहुत सारी स्टेट्स पे, राइट, जो स्टेट्स जो स्पेंड करती है पैसा अपना एजुकेशन पे, वो बहुत कम है. इतना कम है कि जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उससे भी ज्यादा कम. हमारी कंट्री जहां पे डेमोग्राफिकली
हम ये देखते हैं कि यूथ जो है वो ज्यादा है, बच्चे जो है वो ज्यादा है, तो हमारी स्टेट्स को जो एक्सपेंडिचर है वो एजुकेशन पे ज्यादा करना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो बजटेड एक्सपेंडिचर का जो डेटा है वो ये बताता है कि बहुत सारी स्टेट्स ने इतना कम spending की है एजुकेशन पे, which is even less than the middle income countries. Okay, so according to the Ministry of Education analysis of budgeted expenditure on education, most major states spend in the range of 2.5 to 3.1% of the state income on education. तो इतना कम, so इवन की मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज भी इससे ज्यादा जो है वो अपनी स्टेट इनकम का जो पोर्शन है वो एजुकेशन पे स्पेंड करती है। According to the Education Finance Watch 2001 of World Bank, low-income countries increased their spending from 3.2% to 3.5% of the GDP in this arena. Okay, so हमें ये देखना है कि हमारी पॉपुलेशन कहाँ स्टैंड कर रही है। हमारी इतनी जो वास्ट पॉपुलेशन है विद डेमोग्राफिक एडवांटेज, हमें ज्यादा से ज्यादा पोर्शन हमारी स्टेट्स को एजुकेशन सेक्टर पे स्पेंड करना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, व्हाट पर्पस, सिर्फ पॉलिसी मेकिंग में ही नहीं, इन रियलिटी ऑन ग्राउंड हमें एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना है। हमें हमें रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन प्रैक्टिसेस लानी है, हमें बिहेवियरल चेंज करना है हमारे ट्यूटर्स का, एजुकेटर्स का, मेंटर्स का, कि वो एजुकेशन में ऐसे ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस लाएं जिससे कि एक हमें ओरिएंटेड रिजल्ट मिले। ओके, सो स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट्स के अलग अलग डेटा हैं। बहुत सारे स्टेट्स बहुत कम बजट एलोकेट करती है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, राइट। तो यूनेस्को के जो 230 फ्रेमवर्क है, 2030 का जो फ्रेमवर्क है, वो ये सजेस्ट करता है एजुकेशन पे जो स्पेंड होना चाहिए बजट का पोर्शन, वो होना चाहिए बिटवीन 4 to 6% ऑफ जीडीपी एंड 15 to 20% ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, जबकि हमारी कंट्री में काफी लेस है। वर्ल्ड बैंक स्टडी ने ये नोट किया कि जो इंडिया 14.1% अपना बजट जो है वो एजुकेशन पे स्पेंड करता है, कंपेयर टू 18.5% इन वियतनाम एंड 20.6% इन इंडोनेशिया। ठीक है, इन दोनों कंट्रीज की जीडीपी जो है वो सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है इंडिया के। लेकिन इंडिया का जो बजट है, जो एलोकेशन है, बजट एलोकेशन एजुकेशन पे, वो काफी कम है एज कंपेयर टू दीज मिडल मिड इनकम डेवलपिंग कंट्रीज के। ओके, सो अगर हम लोग इस आर्टिकल में देखें कि हमें क्या इस आर्टिकल में कंटेंट मिलेगा जो कि हम यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, वो ये है इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन लर्निंग। आपको पता है द वास्ट मेजोरिटी ऑफ 20 to 60 million children enrolled in preschool and school, especially in government school, did not have meaningful structured learning opportunities. This is the word, this is the line which you have to understand. आप इसको इंटरव्यू में यूज करेंगे, it is very important. Meaningful structured learning opportunities, right? अगर ये हमारी कंट्री में सही हो जाए, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, तो हमारी कंट्री का जो विजन है, जो हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है, जो डेवलपिंग, जिस पेस से हम लोग डेवलप हो रहे हैं, उसमें काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आएंगे। ठीक है, our children has lost basic literacy skills and numeracy skills and even the habit of learning, क्योंकि इंडिया मोस्टली जो है वो रूरल इंडिया है। रूरल जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एनरोलमेंट है वो रूरल इंडिया में ज्यादा है, तो इन पर्सन टीचिंग एजुकेशन का महत्व जो है वो रूरल इंडिया में ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन इंडिया। तो बच्चे टीचर्स से इन पर्सन लर्निंग से ज्यादा सीखते हैं एज कंपेयर टू ऑनलाइन लर्निंग। वो ज्यादा डिसिप्लिन रहते हैं, ठीक है, वो अपने बेसिक लिटरेसी स्किल्स, जो सोशल पेयरिंग है, लिटरेसी स्किल्स है, न्यूमरेसी स्किल्स है, और जो हैबिट ऑफ लर्निंग है वो ज्यादा रहती है व्हेन दे गो टू स्कूल, राइट। हमने इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी पहले कवर किया था। तो अगर हम रूरल इंडिया में की बात करें, तो रूरल इंडिया में इन पर्सन टीचिंग की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो एक कंसिस्टेंसी चाहिए हमारी एजुकेशन सिस्टम में। ओके, तो जैसे ही कोई भी ओमिक्रॉन का वेव, फॉर एग्जांपल अभी न्यू कोविड आ रहा है, ओमिक्रॉन का वेरिएंट आया कोरोना वायरस के, तो स्टेट्स गवर्नमेंट रश टू क्लोज प्राइमरी स्कूल फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसा अगर हम लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द एजुकेशन ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, तो बच्चे जो है वो वही हमारे देश का फ्यूचर है, तो हमें उनके एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो इस आर्टिकल में ये भी दिखा गया कि एजुकेशन एक्सपेंडिचर बाय अदर डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन एक्सपेंडिचर है बाकी डिपार्टमेंट्स का, हैज बीन राइजिंग फास्टर देन द एजुकेशन डिपार्टमेंट।
ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक भी काफी ज्यादा जो अपनी मिनिस्ट्री का जो बजट है वो एलोकेट करता है एजुकेशन पे। लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो कि हाई स्कूल या हम लोग प्राइमरी स्कूल्स, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, अगर हम इनकी बात करें, इनके एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की बात करें, तो काफी ज्यादा कम बजट एलोकेशन है। तो हमें ये देखना है कि हमें स्टूडेंट्स के बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, राइट। हमें ज्यादा से ज्यादा जो पोर्शन है हमारे बजट का वो एलोकेट करना है एजुकेशन पे, राइट। हमें लो लेवल एजुकेशन पे, हमें ग्राउंड लेवल एजुकेशन पे, सॉरी लो लेवल नहीं, ग्राउंड लेवल एजुकेशन पे हमें ज्यादा से ज्यादा बजट एलोकेट करना है, ताकि हमारे बच्चे जो है वो, हमारे देश के बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन एजुकेशन। नाउ एन आर्टिकल विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर लास्ट न्यूज़लेटर जर्नल। तो इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि जो बजट अब डिस्कस होने वाला है, जो बजट अगला रिलीज होगा, इसमें जो पिछले 2 सालों की वजह से जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है, जो या जो रियल ग्रोथ हुई है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, उसको जरूर चेक करके ही अगला बजट जो है वो प्रपोज किया जाए, ठीक है। इस आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स को लेके, राइट। क्योंकि एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिलीज किया है फर्स्ट एडवांस नेशनल अकाउंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, बाकी हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर किया है। प्लीज आप इस आर्टिकल्स को बार बार देखें, इसमें काफी अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग ऑफ कोर्स मेंस में यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू में तो आप लोग डेफिनेटली ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्पफुल रहेगी। और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें इससे थोड़ा सा और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग और अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और www.1psc.com पे जाके और वहां के यूपीएससी एडिटोरियल्स के सेक्शन पे जाके आप लोग ये पूरा कंटेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर नॉट चार्जिंग इवन अ सिंगल रूपी फॉर एनीथिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बी सेफ एंड enjoy your preparation. Bye bye, take care.